Hello students and welcome to English class Mathematician Agaraj World School. Today we are going to start with present perfect continuous tense. In the previous videos we have already discussed three types of tenses till now: simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. Now we are going to start with present perfect continuous tense. So first of all, the rule of formation of sentences in present perfect continuous tense: affirmative, negative, interrogative and negative. So affirmative, subject plus has or have plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Okay, so let's take an example side by side. Subject, for example, she has been living here since 1996. Okay, she has been living here since 1996. So here the first thing to be kept in mind is कि हमें has कहाँ लगाना है, have कहाँ लगाना है. We discussed about this in our previous video also. हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस भी किया था. लेट मी टेल यू अगेन. विद फर्स्ट पर्सन वी यूज हैव. अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई या फिर वी है तो हम हैव लगाते हैं. अगर वो सेकंड पर्सन है तो भी हम हैव लगाते हैं. अगर वो थर्ड पर्सन प्लूरल है तो भी हम हैव लगाते हैं. एंड इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हम हैज लगाते हैं. ओके, सो अब हम हैज कब यूज करते हैं और हैव कब यूज करते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव. सो शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने क्या लगाया है, हैज. शी सब्जेक्ट हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1996. अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि हमें सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है. सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं. वेयर डू वी यूज सिंस एंड वेयर डू वी यूज फॉर. लेट मी टेल यू. सिंस एंड द सेकंड वन इज फॉर. सो फॉर और सिंस हम तब यूज करते हैं, सिंस हम तब लगाते हैं when we refer to a point of time in past, जब से वो एक्शन अभी तक कंटिन्यू हो रहा है. So since 1996 मतलब 1996 में वो एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक इट इज कंटिन्यूइंग. ओके, और फॉर कब लगाते हैं when we are given a specific period of time like 2 years, मतलब 2 years से या फिर 1996 से अब तक. ओके, so if we are given a point of time in past मतलब तब से अब तक तो हम लगाते हैं since. और for कब लगाते हैं, जब एक ड्यूरेशन की होती है 2 years, 3 days, 1 week. ओके, if a duration is given तो हम for लगाते हैं, राइट. सो अगर ये होता, if the sentence would have been she has been living here for 3 years, okay, since 1996. So got the difference? डिफरेंस समझ में आया आपको. सिंस हम लगाते हैं जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक एक्शन कंटिन्यू हो रहा है एंड फॉर हम लगाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के. ओके, नाउ नेगेटिव हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus
let's convert this into negative. She has not been living here since 1996, or she has not been living here for 3 years or 2 years or whatever, right? Now we have interrogative has or have plus subject plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Let's convert the sentence into interrogative now. Has को हम starting में ले आएंगे and rest of the sentence would remain the same. Has हटा देंगे यहाँ से starting में ले जाएंगे. Has she been living here since 1996? or has she been living here for 2 years or 3 years, whatever. Okay. Now negative interrogative. Has or have plus subject plus not plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Okay. Has he or she not been living here since 1996, or has she not been living here for 2 years or for 3 years? Okay. Another way of forming negative interrogative sentence is hasn't or haven't plus subject plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Question. For example, hasn't she been living here since 1996, or hasn't she been living here for 2 years or 3 years, whatever, according to the duration of time. Okay. Now let's discuss some of the questions related to error finding. Error finding से related कुछ questions discuss करते हैं. Present tense पे based. All 4 kinds of present tense. Let me first tell you that जब भी error finding का कोई question आता है, error finding मतलब गलती निकालना. ओके. मतलब क्वेश्चन में कुछ गलती होगी, आपको वो पहचान के उसको सही करना है. That is error finding. Now there are 2 ways of finding error. एक होता है कि आप यूजर्स के बेसिस पे निकालो error. ओके. एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन रूल्स या फिर यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ओके. यूजर्स में क्या क्या आता है, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि रूटीन वर्क या हैबिचुअल एक्शन होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं. ऐसे हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था, परफेक्ट पढ़ा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा. सो बेसिकली यूजेस मतलब उसको कहाँ पे यूज करना है उसके अकॉर्डिंग एरर फाइंड करना. एंड द सेकेंड वन इज रूल्स के अकॉर्डिंग एरर फाइंड करना. इस कहाँ लगाएंगे, एंड कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, डू नॉट, डज नॉट, डू, डज, ये सब चीज़ें कहाँ लगती हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन डिटेल. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू एरर करेक्शन और एरर फाइंडिंग. पहला क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर you will return, after you will return, I will come to meet you. Okay. So let me give you a hint. यहाँ पे ये एक clause है, I will come to meet you. This is a clause and this is a conditional clause again. Okay. तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यूज पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में. वो क्या था,
that if there is a clause here और उसमें कंडीशनल क्लॉज लगा देते हैं, हम एक और क्लॉज लगा देते हैं। क्लॉज क्या होता है? जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें होती हैं। ओके, सो जहाँ पे कंजंक्शन होता है, व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। जब भी हम टू क्लॉजेस को या टू सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं या फ्रेजेस को जॉइन करते हैं, उन वर्ड्स को, जिन वर्ड्स को यूज करके हम उनको जॉइन करते हैं, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। सो आफ्टर इज अ कंजंक्शन हियर, आफ्टर यू विल रिटर्न, हियर वी हैव अ सब्जेक्ट, हियर वी हैव अ वर्ब, आई सब्जेक्ट विल कम वर्ब। सो हियर वी हैव टू क्लॉजेस, यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं और वो फ्यूचर टेंस में है। तो जिस क्लॉज में कंजंक्शन लगा है उसमें हम क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल लगाते हैं। एंड व्हाट इज दैट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस इफ रिक्वायर्ड, राइट? सो आफ्टर यू रिटर्न, यू है, यू इज सेकंड पर्सन, तो हम क्या लगाएंगे? एस ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नो, क्योंकि एस ई एस हम लगाते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ओनली विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो आफ्टर यू रिटर्न आई विल कम टू मीट यू। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? आफ्टर यू रिटर्न आई विल कम टू मीट यू। सो दिस वाज वन ऑफ द एरर्स एंड दिस इज हाउ वी फाइंड एरर्स। या तो हम यूज के बेसिस पे निकालते हैं या फिर हम रूल्स के बेसिस पे निकालते हैं। ओके, नाउ द सेकंड सेंटेंस, आई कंप्लीट my work just now, मैंने अपना वर्क अभी अभी कंप्लीट किया है। तो दिस इज द वर्क कंप्लीट। सो ये क्या है? दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और हम कौन सा टेंस यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है? समथिंग, द एक्टिविटी और एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ। कौन सा टेंस किया था हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म फॉर आई, हैज और हैव लगाते हैं। सो आई के साथ हम हैव लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन, एंड कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म फॉर। सो वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन सच केसेस, जब कोई एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है। Okay, so I have completed my work just now. This is how we correct the sentences. The next one, the food is smelling good. The food is smelling good. So here is smelling आया है इस sentence में, right? So the food is the subject here. is smelling हमने कौन सा tense use किया है? Present continuous tense. Okay. Now smelling. Smell जो होती है, is it an action verb or a state verb? Stative verb है या dynamic verb? We discussed about this in the last lecture कि stative verb क्या होता है, dynamic verb क्या होता है, action verb and state verb. So action verbs वो verbs होते हैं जो कि हमारी कोई physical activity को express करते हैं, like play, sit, jump, okay? But here this is a state verb. और हमने क्या पढ़ा था कि हम state verb के साथ continuous form use नहीं करते। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? We only use simple present tense. तो यहाँ पे क्या आएगा? The food is smelling की जगह क्या आएगा? The food is singular, third person singular, so smells. Good. So this is how we find errors using with the help of the uses. अगर हम टेंस का यूज हमें पता है तो हम कैसे एरर फाइंड कर सकते हैं, ये उसके बारे में था। नाउ द सेकंड वन कि हम एरर रूल्स के बेसिस पे कैसे फाइंड कर सकते हैं कि रूल में एरर है या नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन में एरर है या नहीं, वो हम कैसे पता करते हैं
verb. Okay, so which tense is it? Subject plus first form of verb plus object. SES अगर लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे. Yes, so subject plus first form of verb plus object. This is simple present tense. So the bag is singular, third person singular है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? S और ES, या तो S लगाएंगे या ES लगाएंगे. So belong का क्या बन जाएगा? Belongs. The bag belongs to me. This is the sentence. ये sentence है. The bag belongs to me. The second one is it has been drizzling for morning. What is the error here? Very simple. It's very simple. बहुत ही simple है. It has been drizzling for morning. Drizzling मतलब बूंदाबांदी होना. Okay, धीरे धीरे से बारिश होना. In a very slow manner. Okay, so it has been drizzling for morning. ये error है. For हम यहाँ क्या use करेंगे? Since. Why? क्योंकि हम बोल रहे हैं मॉर्निंग से अब तक, राइट? हम कोई ड्यूरेशन नहीं दे रहे. अगर हम ड्यूरेशन देते हैं तो वहाँ हम लगाते हैं फॉर, और जब हम ड्यूरेशन नहीं देते हम कहते हैं पास्ट में शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, तो वो होता है फॉर, सॉरी सिंस. ओके, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है अब तक. ओके, फॉर कब लगता है? फॉर 2 hours और फॉर 2 days, राइट? नाउ द थर्ड सेंटेंस, they is living here. They is living in Mumbai. What is the error here? They is living in Mumbai. ये यूज के बेसिस पे भी हो सकता है, ये रूल के बेसिस पे भी हो सकता है. यू हैव टू फाइंड इट आउट. यस, सो दे इज लिविंग इन मुंबई. दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला एरर ये है कि दे के साथ इज नहीं लगता, आर लगता है. सेकंड इज कि यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बिकॉज लिव इज अ स्टेट वर्ब. एक्शन वर्ब है लिव. It's a state verb. So यहाँ हम बोलेंगे they live in Mumbai. Okay. So this is how we find errors in sentences using the considering the uses and the rules. Use के basis पे लगाना है, rules के basis पे लगाना है, ये आपको जज करना है सेंटेंस में. और अगर वो यूज अप्लाई होता है किसी टेंस का तो आपको वो टेंस यूज करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस टेंस है क्वेश्चन में, लेकिन हमें कौन सा टेंस यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये यूज के बेसिस पे हमने सही टेंस यूज किया. सो एरर करेक्शन बेसिकली मीन्स कि हमें गलत चीज को, गलत पॉइंट को मार्क करके वहाँ पे सही